Hi friends, welcome on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. Friends, today I am going to teach you how to make procedure of kappa. Friends, after getting this video, you can understood step by step how to make kappa procedure and how to fill kappa. So friends, this is the most important topic. Generally questions asked frequently during interview. So friends, let me continue this video till end. दोस्तों, हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि यदि कोई कैंडिडेट अपनी बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री कंप्लीट होने के बाद किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाता है या किसी अन्य कार्य में बिजी रहने के कारण जॉब नहीं कर पाता है, तो वो अपने बीते हुए टाइम पीरियड को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकता है हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद इंटरव्यू में कैंडिडेट अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकता है और अपना एक नया फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। सो प्लीज़ ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉल द नंबर गिवन इन स्क्रीन। फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर ट्रेनिंग कोर्स टेम्पलेट. These all trainings are teaching with perfect knowledge of theoretical as well as practical on Excel sheet and PowerPoint. Friends, if you do not have knowledge of Excel and PowerPoint operating, then this is advantage for you. You can get the knowledge of Excel and PowerPoint operating during joining this course. Friends, online as well as offline training facilities available. If you need online classes, then your certificate will be mailed or courier at your residence address. Friends, if you join our complete advanced training course as shown in template, then job guarantee is 100% after completion of training course. And friend, after completion of our advanced training course, our participant can make all industrial document on self-knowledge, and he can implement self-prepared document in any industries after joining. If any guys interested, can contact on the number given on screen. This is the procedure for corrective action and preventive action. First, we explain purpose. What is the purpose of this procedure? To establish a procedure for receiving the non-conformities, find the root cause and take actions to ensure that the same non-conformities are repeated and eliminate the potential non-conformities to prevent their occurrence, and to monitor the effectiveness of corrective and preventive actions taken. Second number पे है scope, applicable for all types of non-conformities including customer, returned product and all functional areas. थर्ड नंबर पे है प्रोसेस ओनर. प्रोसेस ओनर विल बी डिपार्टमेंटल हेड /MR. नेक्स्ट प्रोसेस. लेट वी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू मेक kappa procedure. This is input activity, and here finally input we get, and here output and responsibility. First 4.1 problem solving. As a first step, the root cause for the non-conforming or non-conformance is found using either one of the following problem solving tool: fishbone diagram, YY analysis and brainstorming. फ्रेंड्स, जब हम कापा बनाते हैं तो उसमें हमको रूट कॉज फाइंड आउट करने के लिए इनमें से किसी भी एक टूल का आप यूज़ कर सकते हैं, और तीनों के तीन टूलों का भी यूज़ कर सकते हैं. इनपुट आपका क्या क्या चाहिए? नॉन कन्फर्मिटीज़ और नॉन कन्फर्मेंस. आउटपुट है आपका रूट कॉज एनालिसिस. आपके आउटपुट में रूट कॉज एनालिसिस निकल के आएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिपार्टमेंटल हेड या CFT भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. 4.2 में क्या है? Once the root cause is identified, then action to control or eliminate the root cause are initialized through corrective and preventive action report. इनपुट क्या रहेगा आपका? रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन. आउटपुट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट QSF 1F1501. जो आप पूरा कंप्लीट कापा भरोगे एज एन एविडेंस फॉर द correct analysis of problem. The document number of kappa is QSF 1501 and responsibility departmental head. 4.3 The suggested or proposed corrective / preventive actions are implemented. जो एक्शंस आपने प्रपोज्ड किया था कापा में, अब आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मीन्स जब आपको इम्प्लीमेंट करोगे तो इनपुट में क्या निकल के आएगा आपका पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, देन आपको इम्प्लीमेंट करना है। आउटपुट क्या आएगा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटल हेड। नेक्स्ट है 4.4, द इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन इज मॉनिटर्ड। जो आपने करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन लिया है अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन यू हैव टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इनपुट क्या आएगा आपका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कापा। जो आपने कापा में एक्शंस मेंशन किए हैं उसको आप इम्प्लीमेंट होने के बाद इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग करोगे, तो इनपुट में क्या पहले आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने एक्शंस को, देन यू हैव टू मॉनिटर देयर इफेक्टिवनेस। आउटपुट इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग सीट। आप इसकी एक अलग से सीट भी बना सकते हो और कापा में ही आप जो है कॉलम ऐड कर सकते हो इफेक्टिवनेस का। आप इफेक्टिवनेस डेली भी चेक कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटल हेड। 4.5, once the corrective action is found effective then the same concept is applied for similar type of product or process। जब आप करेक्टिव एक्शन ले लेते हो और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको लगता है कि इफेक्टिवनेस इसका ओके है, प्रॉब्लम दोबारा रिअकर नहीं हो रही है, देन यू हैव टू टेकन सेम एक्शन ऑन सिमिलर प्रोडक्ट और सिमिलर स्टेजेस। इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। इनपुट क्या चाहिए? इफेक्टिवनेस ऑफ कापा। पहले आप उसका इफेक्टिवनेस देखोगे जो आपने एक्शन इम्प्लीमेंट किया है, देन यू हैव टू सिमिलरली इम्प्लीमेंटेड ऑन सेम प्रोडक्ट। आउटपुट करेक्टिव एक्शंस इम्पैक्ट। आपको करेक्टिव एक्शंस का इम्पैक्ट देखना है, यानी उसकी इफेक्टिवनेस निकल के आएगी आउटपुट में। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डिपार्टमेंटल हेड। नेक्स्ट 4.6, वेयर एवर possible applicable the corrective action preventive action will concentrate or error proofing methodology। जब आप करेक्टिव एक्शन प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो हमको ज़्यादातर फोकस करना चाहिए कि आप एरर प्रूफिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जस्ट लाइक आपको पोकायो के लगाने की ज़्यादा फोकस करना चाहिए वहाँ पे कि वंस यू इम्प्लीमेंटेड पोकायो के देन देयर इज़ नो स्कोप फॉर रीअकरेंस ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि पोकायो के एरर प्रूफिंग मेथोडोलॉजी है, ये इसका बेस्ट वे है टू प्रिवेंट दी रीअकरेंस ऑफ प्रॉब्लम। इनपुट क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट कॉज। आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको पोकायो के लगाना है। आपको जहाँ पे सुटेबिलिटी है पोकायो का लगाने की वहाँ पे आप कोशिश करो पोकायो को लगाया जाए, अदरवाइज वहाँ पे जहाँ कहीं पे फिजिबिलिटी नहीं है तो उसका जो है अदर कोई एक्शंस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आउटपुट क्या है? मिस्टेक प्रूफिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंटल हेड। नेक्स्ट पॉइंट 4.7, द एवरेज साइकिल टाइम टेकन टू क्लोजर द कस्टमर कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डेविएशन इज प्रोडक्ट और डेवलपमेंट। द एवरेज साइकिल टाइम टू क्लोजर द कस्टमर कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डेविएशन, ये डिफाइन होता है कस्टमर के द्वारा कि आपको 24 आवर्स के अंदर प्रॉब्लम का रिप्लाई करना है और प्रॉब्लम का जो है क्लोज भी करना है, और किसी कस्टमर की तरफ से 48 आवर्स का भी होता है। सो सप्लायर आफ्टर ऑल कस्टमर ड्रीवन, जैसा कस्टमर चाहेगा वैसे ही आप प्रॉब्लम को क्लोजर करके उसको देना है। दीज आर सम रिकॉर्ड रेफरेंस करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन रिपोर्ट QSF 1501, कापा का डॉक्यूमेंट नंबर है ये। कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर QSF 1F02, ये कस्टमर कंप्लेंट का रजिस्टर का नंबर है। हेयर रिवीजन हिस्ट्री, जब आप प्रोसीजर में रिवीजन करोगे तो यहाँ रिवीजन डेट आ जाएगी या रिवीजन नंबर आ जाएगा। नाउ इन लास्ट प्रिपेयर्ड बाय एंड अप्रूव्ड बाय। Friends, if you need industrial documentation training from our training center, you can call the number given on screen. Friend, all topics related to industrial documentation will be provided, theoretical as well as practical. After completion of training course from our training center, the candidate can make all documents on self-knowledge and he can build up his IQ level for cracking interview, and he can take his career graph on peak. Thank you.